वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्याम् भूमिर्दशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेदम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विदित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन यदास्ते धाता पुरस्तादमुदादहार शक्रप्रविद्वान् प्रतिशस्तदस्रः तमेवम् विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यदयनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीनाम् परमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्यः आदपति यो देवानाम् पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋजाय ब्राह्मये ऋजम् ब्राह्मम् जनयन्तः देवाग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवम् ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा अजन्वजे श्रीश्वरे लक्ष्मीस्तपत्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तुम् इष्टम् मनिषाण अमुम् मनिषाण सर्वम् मनिषाण सहस्रशीर्षम् देवम् विश्वाक्षम् विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणम् देवमक्षरम् परमम् पदम् विश्वतः परमा नित्यम् विश्वन्नारायणकम् हरिम् विश्वमेवेदम् पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पदिम् विश्वस्यात्मेश्वरकम् शाश्वतकम् शिवमच्युतम् नारायणम् महाज्ञेयम् विश्वात्मानम् परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरम् ब्रह्मतत्त्वम् नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानम् नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वम् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वम् व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययम् कविगुम् समुद्रेऽन्तम् विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशकम् कृतोमुखम् अभो नित्याविदस्यान्ते नाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलम् भाति विश्वस्यायतनम् महत् सन्ततकुम् शिलाभित्तुलम् पत्या घोषसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरकुम् सूक्ष्मम् तस्मिन् सर्वम् प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महालक्ष्मिर्विश्वार्तिर्विश्वतो मुखः स्तोत्रभुक्तिभजन् तिष्ठन्नाहारमधरः कविः त्रियगोर्भमधश्राजीरश्मजस्तस्य सन्ततः सन्तापयति स्वन्देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखानीयोद्भाव्यवस्थितः नीरतो
காலத்தில் திருச்சானூரத்தில் இருப்பது போலவே ஸ்ரீ பத்மாவதி எனும் அலர்மேல்மங்கை தாயாருக்கு தனி கோவில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பகவான் எப்படி திருமலையில் தனக்கு நடைபெறும் உற்சவ விஷயங்கள் அனைத்தும் திருச்சானூர் தாயாருக்கும் நடைபெற வேண்டும் என்று ஆக்ஞை பிறப்பித்திருக்காரோ அதே போல இதோ இங்கே கோவில் கொண்டிருக்கும் இந்த தியாகராய நகரிலும் தாயாருக்கு தனிக்கோவில் அமைக்கப்பட்டு அங்கும் இதோ பிரம்மோற்சவம் தொடங்கப்படுவது எத்தனை பெரிய விசேஷம்! சென்னை வாசிகளை பாக்கியம் செய்தவர்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். திருமலை திருப்பதி யாத்திரை மேற்கொள்ளும் போது முதலில் திருச்சானூர் சென்று தாயாரை சேவித்து பின்பு மலையேறி பெருமாளை சேவிக்க வேண்டும். ஆனால் இந்த சென்னை மாநகரிலோ எந்தவிதமான சிரமமும் இன்றி பெருமாள் தாயார் இருவரையும் சுலபமாக சேவித்துள்ளாம். இனி இந்த உற்சவ விசேஷத்துக்கு வருவோம். இந்த உற்சவத்தில் இப்போது நடைபெற இருப்பது துவஜாரோகண கைங்கரியம், அதாவது கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கப்படுகிறது. இதுதான் நமது சம்பிரதாயம். அதுபோல இதோ தாயாரின் பிரம்மோற்சவத்திலும் நாம் இப்போது சேவித்துக் கொண்டிருப்பது அந்த கொடியேற்றும் கைங்கரியம். இந்த துவஜஸ்தம்பத்தில் மேலிருக்கும் அந்த கொடி அனைத்து பக்தர்களையும் உற்சவத்துக்கு வாருங்கள் வாருங்கள் என்று அழைக்குமாம். இதில் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னவென்றால், திருவேங்கடமுடையானின் துவஜத்தில் கருடாழ்வாரும் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாரின் துவஜத்தில் தாயாருக்கு மிகவும் பிரிய வாகனமான யானை இடம்பெற்றிருக்கிறது. யானை ஐஸ்வர்யத்தின் அடையாளம். தாயாரோ தனது கருடா கடாட்சத்தால் பக்தர்களுக்கு ஐஸ்வர்யத்தை வழங்குபவள் அல்லவா? ஆகவே அவளது துவஜத்தில் யானை இடம்பெற்றிருப்பது மிகவும் பொருத்தமே. அன்று தூர்வாசர் அளித்த மகாலட்சுமியின் பிரசாதத்தை இந்திரன் மகிமை அறியாமல் தன்னுடைய ஐராவதத்தின் கழுத்தில் போட்டான். அதுவோ அதனுடைய மகிமை தெரியாமல் அதை கீழே போட்டு முதித்து விட்டது. அது ஐந்தறிவு படைத்தது தானே. தூர்வாசனின் சாபத்தால் இந்திரன் தேவப்பதவி இழந்ததோடு இந்த ஐராவதமும் கடலில் மூழ்கிவிட்டதாம். அதன் பின்பு எம்பெருமான் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவின் ஆலோசனையின் பேரில் தேவர்களும் அசுரர்களும் பார்க்கடலை கடைய அதிலிருந்து ஒரு அபூர்வ வஸ்துமாக வெளியே வர இந்த ஐராவதமும் வெளியே வந்ததாம். அடுத்து வந்த தாயாரிடம் மண்டியிட்டு மன்னிப்பு வேண்டியதாம். தாயார் கருணாமயி அல்லவா? ஐராவதத்தை மன்னித்ததோடு அதனது வேண்டுகோளின்படி தனது வாகனமாகவும் கொடியிலும் இடம்பெற அருள் புரிந்தாளாம். ब्रह्मणः प्रीत्यै मध्यमस्वरः मेघरञ्जीरागं कीर्तयेत् ब्रह्मतालं घोषयेत् सर्वमङ्गलनृत्तं कारयेत् मेघरञ्जीरागम् ब्रह्मतालम् अण्डमण्डलकोटिमण्डितनाभिपङ्कजविष्टरम् अण्डसंस्थचराचरासुरदेवराक्षसकारिणम् हंसरूपकविष्णुबोधितवेदशास्त्रविचक्षणम् नौमि वेदसमब्जलोचनपादपूजनतत्परम् अण्डमण्डलकोटिमण्डितनाभिपङ्कजविष्टरम् अण्डसंस्थचराचरासुरदेवराक्षसकारिणम् हंसरूपकविष्णुबोधितवेदशास्त्रविचक्षणम् नौमि वेदसमब्जलोचनपादपूजनतत्परम् पादपूजनतत्परम् पुरन्दरः ऐरावतं गजारूढं पीतकौशेयवाससं चतुर्बाहुं सहस्राक्षं शचीदेवी समन्वितं वज्राङ्कुशधरं सौम्यं प्राञ्जलिं नीरजप्रभं ध्यात्वैवं वासवं प्राच्यां गुडान्नेन बलिं क्षिपेत् शचीपते जिताराते वज्रपाणे पुरन्दर लक्ष्मीसोत्सवसेवार्थम् आगच्छमरवल्लभ ॐ लम्मिन्द्राय नमः गच्छ गच्छ ओम त्राता रविंद्रमविता रविंद्रगं हवे हवे सुहवगं शूरविंद्रं
हुवेणु शक्रम् पुरुहूतमिन्द्रग् स्वस्तिनो मघवादात्विन्द्रः इंद्राय नमः अर्घ्यपाद्याचमन गंधपुष्प धूपदीपं समर्प्य ओम देवराजाय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्रः प्रचोदयात् ओम लं इंद्राय नमः अर्घ्यपाद्याचमन गंधपुष्प धूपदीपं समर्प्य ओम लं इंद्राय नमः अर्घणं गृहाण बलिं गृहाण तर्पणं गृहाण स्वाहा इंद्रप्रीत्यै वर्णस्वरः गांधाररागं समतालं सर्वतो भद्रनृत्तं गांधारम् इंद्रतालं निखिल सुरवर मकुट मणि घृणि चुंबितांघ्रि सरोरुहं कमलदल निभ कांति मिश्रित नेत्र दश शत शोभितं विमल गज यगमन मति बल दैत्यनाशन कारणं निखिल मुनिकृत यज्ञ भोगिनमिन्द्रमद्य भजामितं निखिल सुरवर मकुट मणि घृणि चुंबितांघ्रि सरोरुहं कमलदल निभ कांति मिश्रित नेत्र दश शत शोभितं विमल गज यगमन मति बल दैत्यनाशन कारणं निखिल मुनिकृत यज्ञ भोगिनमिन्द्रमद्य भजामितं इंद्रमद्य भजामितं इंद्रः प्रागाद्याग्नेयान्तं मण्डलं बन्धयतु ओम लहास्त्राय पटे हव्यवाहः मेषारूढं हव्यवाहं त्रिनेत्रं स्वर्णवाससं स्वाहा स्वधाभ्यां सहितं चतुर्हस्तं महाप्रभं प्राञ्जलिं चापराभ्यां च हस्ताभ्यां सृक्सृवं धरं ध्यात्वेत्थं वह्निकोणस्थं घृतान्नं बलिमुक्षिपेत् स्वाहा स्वधापते वह्ने गार्हपत्यादिनात्मक लक्ष्मी सोत्सव सेवार्थम् आगच्छ मखपूजिता ओम रमग्नये नमः गच्छ गच्छ त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासि ज्येष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमश्चोषु जानो विश्वात्वेषागुंसि प्रमुमुग्ध्यस्मत् ओम रुद्रनेत्राय विद्महे ज्वालाचक्राय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् अर्घ्यपाद्याचमन गन्धपुष्प धूपदीपं समर्प्य ओम रमग्नये नमः अर्घणं गृहाण बलिं गृहाण तर्पणं गृहाण स्वाहा ओम वैश्वानराय विद्महे लालीयाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् अग्निप्रीत्यै ऋषभस्वरं कोल्लीरागं बद्धावतालं सर्वतो भद्रनृत्तम् अग्नितालं सृक्सृवभूषितपाणि सरोरुहमद्भुतशक्तिधरम् विद्युमसन्निभदेघमरीचि विभेदितसन्तमसम् लोकहितार्थमखाहुतिवाहकमभ्यधिरूढमजम् नौमि मखध्वज भासुरस तसुजिह्वसमीरसखं तत्तत् सृक्सृवभूषितपाणि सरोरुहमद्भुतशक्तिधरम् विद्रुमसन्निभदेघमरीचि विभेदितसन्तमसम् लोकहितार्थमखाहुतिवाहकमभ्यधिरूढमजम् नौमि मखध्वज भासुरस सुजिह्वसमीरसखं तत्तत् सुजिह्वसमीरसखम् पूर्वोक्तः अग्निः आग्नेयादियां यां तं मण्डलं बन्धयतु ओम लहास्त्रा ओम रहास्त्राय वटे कृतान्तः कृतान्तं महिषारूढं दण्डपाशधरं विभुं बद्धाञ्जलिपुटं कृष्णं चतुर्बाहुं त्रिलोचनं श्वेतवस्त्रधरं देवं पितॄणाङ्गणनायकम् एवं ध्यात्वा यमदिशीतिलान्नेन बलिं क्षिपेत् लुलाय वाहनारूढकालसंहरिणीपते
लक्ष्मीसोत्सवसेवार्थं मायाहि पितृभिः सह ओम खं यमाय नमः आगच्छ ओम सुगन्नः बन्धामभयं गृणोतु यस्मिन् नक्षत्रे जमयेति राजा यस्मिन्नेनमभ्यषिञ्चन्त देवाः तदस्य चित्रगं हविषा यजामा ओम खं यमाय नमः अर्घ्यवाद्याचमन गंधपुष्प धूपदीपं समर्प्य ओम वैवस्वताय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् ओम खं यमाय नमः अर्घणं गृहाण बलिं गृहाण तर्पणं गृहाण स्वाहा यमप्रीत्यै गान्धारस्वरः कौशिकरागं भृङ्गिणीतालं खेटकनृत्तं कौशिकम् कालतालं कालदूतपति कालमेघनिभ कालपाशविराजितं कालचक्रगति कालचक्रकृति कालकालमहत्तनुं कालकेतुगण कालहारिरिव कालपूजक सत्प्रियं भेरिकानुगत तालभेदितमकालतालमिदं भजे कालदूतपति कालमेघनिभ कालपाशविराजितं कालचक्रकृति कालचक्रकृति कालकालमहत्तनुं कालकेतुगण कालहारिरिव कालपूजक सत्प्रियं भेरिकानुगत तालभेदितमकालतालमिदं भजे कालतालमिदं भजे पूर्वोक्तः यमः दक्षिणानिनृत्यन्तं मण्डलं बन्धयतो ओम निरुतिः पिशाचस्थं क्रूरमूर्तिं निरुतिं श्वेतवाससं द्विनेत्रं पिङ्गलनिभं खड्गखेटेन शोभितं चतुर्भुजं प्राञ्जलिं च ध्यात्वैवं निरुतिर्दिशि माशान्नेन बलिं क्षिपेत् माशान्नेन बलिं दद्यान् निरुतेः प्रीतिकृत्तिमं कृष्णाङ्गनापुराधीश राक्षसानाङ्गणेश्वर लक्ष्म्योत्सवसेवार्थं निरुते त्वत्रयाहि भो ओम शं निरुतये नमः आगच्छ ओम असुन्वन्तमयजमानमिच्छस्तेन स्येत्यान् तस्करस्यान्वेषि अन्यमस्मदिच्छसाद इत्यानमो देवि निरुते तुभ्यमस्तु ओम निरुतये नमः ओम निशाचराय विद्महे खेटहस्ताय धीमहि तन्नो निरुतिः प्रचोदयात् अर्घ्यपाद्याचमन गंधपुष्प धूपदीपं समर्प्य ओम शं निरुतये नमः अर्घणं गृहाण बलिं गृहाण तर्पणं गृहाण स्वाहा निरुतिप्रीत्यै मध्यमस्वरं नटभाषारागं कीर्तयेत् मल्लतालं घोषयेत् चक्रमण्डल नृत्यं कारयेत् नटभाषारागम् निरुतितालम् अक्षय पक्ष विपक्ष बलक्षयद क्षसपक्षयुगम् चण्डमखण्डित मण्डल कुण्डल मण्डित गण्डतटम् पानगपान कृपाण गणाकुल कोणपकोणपतिम् चिन्तय सन्ततमन्तरवन्तमनन्त गुणन्तमिमम् अक्षय पक्ष विपक्ष बलक्षयद क्षसपक्षयुगम् चण्डमखण्डित मण्डल कुण्डल मण्डित गण्डतटम् पानगपान कृपाण गणाकुल कोणपकोणपतिम् चिन्तय सन्ततमन्तरवन्तमनन्त गुणन्तमिमम् तत्तत् अनन्त गुणन्तमिमम् पूर्वोक्तः निरुतिः नैऋत्यादिपश्चिमान्तं मण्डलं बन्धयतु ओम शास्त्राय पटे वरुणः मकरं यानमारूढं श्वेतवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं वरुणं सन्नताञ्जलिं
द्विनेत्रं शीतलानाथं यादोभिः परिवेष्टितं ध्यात्वैवं पश्चिमदिशि दध्यन्नेन बलिं क्षिपेत् श्रद्धावती पुरीनाथ पश्चिमाशापते विभो लक्ष्म्योत्सवसेवार्थम् आगच्छ जलजेश्वर ओं वं वरुणाय नमः गच्छ गच्छ ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्तेजमानो हविर्भिः अहेलमानो वरुणेह वो दुर्हंसानाय प्रमोदीः ओं वं वरुणाय नमः अर्घ्यवाद्याचमनगन्धपुष्पधूपदीपं समर्पयामि ओं सुधेश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् ओं वं वरुणाय नमः अर्घणं गृहाण बलिं गृहाण तर्पणं गृहाण स्वाहा वरुणप्रीत्यै पंचमस्वरं कामदरागं कीर्तयेत् मंगलतालं घोषयेत् गान्धारनृत्तं कारयेत् कामदरागम् वरुणतालं विनमत वरुणं गरधृतवरपाशं जलनिधि सदनं मकरगमनिशं जलचरकुलराजं नीरदमेचकमञ्जुलदेहसमञ्चितभूषित बाहुयुगं शुभगणसहितं सुरगणविनुतं तमपरहरिधीशं तत्तत् विनमत वरुणं करधृतवरपाशं जलनिधि सदनं मकरगमनिशं जलचरकुलराजं नीरदमेचकमञ्जुलदेहसमञ्चितभूषित बाहुयुगं शुभगणसहितं सुरगणविनुतं तमपरहरिधीशं तत्तमपरहरिधीशं पूर्वोक्तः वरुणः पश्चिमादिवायव्यां तं मण्डलं बन्धयतो ओं महास्त्राय भटे सदा गतिः आरूढहरिणीनाथं द्विनेत्रं विशदाम्बरं सदा गत्या जनायक्या समेतं धूम्रवर्णकं वैश्वानरसखं देवं चतुर्बाहुं समन्वितं बद्धाञ्जलिपुटं धीरं ध्वजतोमरधारिणम् एवं वायोर्दिशि ध्यात्वा कुलुत्थान्नं बलिं क्षिपेत् श्रीगन्धपत्तनाधीश सदा गत्या समन्वित लक्ष्म्योत्सवसेवार्थं मायाहित्वं सदा गते ओं यं वायवे नमः गच्छ गच्छ ॐ आनो निजद्भिः शतनीभिरध्वरं सहस्रिणीभिरुपजाहि यज्ञं पाजो अस्मिन् हविषि वादयस्व यूयं पादस्वस्तिभिः सदा नः यं वायवे नमः अर्घ्यवाद्याचमनगन्धपुष्पधूपदीपं समर्पयामि ओं जगत्प्राणाय विद्महे गन्धवाहाय धीमहि तन्नो वायुः प्रचोदयात् ओं यं वायवे नमः अर्घणं गृहाण बलिं गृहाण तर्पणं गृहाण स्वाहा वायुप्रीत्यै दैवतस्वरं तक्केसीरागं जयतालं कुट्टिमनृत्तं तक्केसीरागम् वायुतालं धिमितदिति सुत युवति कुचतट घटित कुङ्कुमहारिणं सतत गतिमिह सकल जगद विचक्षणो सुखमानसं विकच सुरतरु बहुल परिमल कुसुमदाम विराजितं वायुघोषण भेरिताडन वायुतालमिदं भजे धिमितदिति सुत युवति कुचतट घटित कुङ्कुम हारिणं सतत गतिमिह सकल जगद विलक्षणोत्सुखमानसं विकच सुरतरु बहुल परिमल कुसुमदाम विराजितं वायुघोषण भेरिताडन वायुतालमिदं भजे वायुघोषण भेरिताडन वायुतालमिदं भजे पूर्वोक्तः वायुः वायव्यादि सोमान्तं मण्डलं बन्धयतु ओं यहास्त्राय भटे
नरवाहनयक्षेष सम्पद्देवी समन्वित शङ्खानिधिपस्वामिन्नलकापुरनायक लक्ष्म्योत्सवसेवार्थं मायाहि धनदेश्वर ओं सं सोमाय नमः आगच्छागच्छ ओं सोमो धेनुगुं सोमो अर्वन्तमाशुं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदध्यगुं सभेयं पितुश्रवणयो ददाश तस्मै ओं सं सोमाय नमः ओं रुद्रसखाय विद्महे धनाध्यक्षाय धीमहि तन्नो कुबेरः प्रचोदयात् अर्घ्यपाद्याचमन गन्धपुष्प धूपदीपं समर्प्य ओं सं सोमाय नमः अर्घणं गृहाण बलिं गृहाण तर्पणं गृहाण स्वाहा कुबेरप्रीत्यै निषदस्वरं श्रीरागं भद्रतालं कटिबन्धननृत्तम् कुबेरतालं यक्षगण रक्षण विचक्षण कुबेरं दक्षमख तक्षण विपक्षहर मित्रं पुष्पकरथ प्रिय सुचैत्ररथवासं शंखनिधि पद्मनिधि सेवित पदाब्जं यक्षगण रक्षण विचक्षण कुबेरं दक्षमख तक्षण विपक्षहर मित्रं पुष्पकरथ प्रिय सुचैत्ररथवासं शंखनिधि पद्मनिधि सेवित पदाब्जं पुण्यजनार्चित पुण्यजनेशं श्रीकररागहयाधिपयानं श्रीपतिपालन धैर्य विचारं नौमि उदत्परिपाल कुबेरं पुण्यजनार्चित पुण्यजनेशं श्रीकररागहयाधिपयानं श्रीपतिपालन धैर्य विचारं नौमि उदत्परिपाल कुबेरम् पूर्वोक्तः कुबेरः उदगादीशानां तं मण्डलं बन्धयतु ओं सहस्राय वटे मृत्युञ्जयः वृषारूढं पाण्डराभं त्रिनेत्रं गजचर्मिणं मृत्युञ्जयं चतुर्बाहुं चतुर्बद्धाञ्जलिपुटं हरिं कपालशूलहस्तं च शैलराजसुताधिपं ध्यात्वैवं ईशकोणं तु मरीच्यन्नं बलिं क्षिपेत् कैलासाधिपदेवे च जटाचन्द्रविभूषित श्रीकण्ठमृत्युञ्चिद्देव पिनाकिन् भूतनायक लक्ष्म्योत्सवसेवार्थम् आगच्छत्वं स्मरान्तक ओं शं शङ्कराय नमः आगच्छागच्छ ॐ तमीशानन्दगातस्तस्थषष्पतिं धियञ्जिन्ववासे होमहे वयं पूषा नो यथा वेदा सामसत्पृथे रक्षिता पायुरदब्धस्वस्तये ओं शं शङ्कराय नमः अर्घणं गृहाण बलिं गृहाण तर्पणं गृहाण स्वाहा शंकर ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् शंकर प्रीत्यै दैवतस्वरः शंकराभरणरागं कीर्तयेत् ढक्करीतालं घोषयेत् वामजानूर्ध्वनृत्तं कारयेत् शंकराभरणम् ईशानतालं त्रिलोचनं त्रिशूलिनं जटाधरं नटाधिपं कपर्दिनं विमर्दिनं प्रपञ्चमोहकारणं पुरान्तकं जितान्तकं नतं तरङ्गतोषकं चिरन्तरं तपोधनैर्विचिन्त्यमान विग्रहं उमापतिं नमामितं कपालिनं कृपालयं भुजङ्गराजभूषणं कुरङ्गराजपोषणं कलङ्कितो பக்தர்களே, தாயாரின் பிரம்மோற்சவத்தில் அஷ்டதிக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம் இதோ இப்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. துவஜம் என்றால் கொடி. நமது சம்பிரதாயப்படி இந்த துவஜாரோகணத்துக்கு பின்புதான், அதாவது அது உற்சவம் ஆரம்பிப்ப போவதை எல்லோருக்கும் அறிவிக்கும் ஒரு கைங்கரியம் துவஜாரோகணம். ஒவ்வொரு கோவில்களிலும் ஒவ்வொரு பெருமான்களுக்கும் வெவ்வேறு கொடியும் வாகனமும் இருக்கும். ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவுக்கு கருடக்கொடி, சிவபிரானுக்கு நந்திக்கொடி, முருகப்பெருமானுக்கு சேவல் கொடி, அதை போல நமது தாயாருக்கு யானைக்கொடி. அந்த துவஜப்படத்தில் யானையின் உருவத்துக்கு இதோ இப்போது அர்க்யம், பாத்தியம், ஆச்சமனம் போன்ற அந்த உபச்சாரங்கள் செய்ததையும் இப்போது நாம் பார்த்தோம் அல்லவா. சாதாரணமாக பட்டத்து யானை என்பார்கள். அதாவது ராஜாக்கள்
ஏற்க வரும்போது யானை மீதுதான் ஊர்வலம் வருவார்களாம். ராஜலக்ஷ்மியான சுதந்திர லக்ஷ்மியாக திகழும் நமது தாயார் யானையை வாகனமாக கொண்டதும் பின்பு அதையே துவஜப்படத்தில் கொண்டதும் எவ்வளவு பொருத்தம் பார்த்தீர்களா? ஏனென்றால் இவள் அப்படிப்பட்ட ராஜ்யலக்ஷ்மி, சுதந்திர லக்ஷ்மி. பக்தர்களே, அந்த சாதாரணமாக 8 திக்குகளிலும் 8 யானைகள் தங்கள் முதுகில் இந்த பூமியை தாங்குவதாக ஒரு ஐதீகம். யானையின் சக்தி அப்படிப்பட்டது. நமது தாயாரின் அருள் சக்தியோ அதனினும் மேம்பட்டது அல்லவா? ஆகவேதான் அந்த தாயாருக்கு வாகனமாகவும் அதோ அவளது கொடியிலும் இதோ இந்த யானை இடம்பெறும் பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறது. பக்தர்களே, உற்சவம் என்பதே உலக மக்களின் நன்மைக்காக நடத்தப்படுவது. மூலமூர்த்தியின் இறை சக்தியை உற்சவ மூர்த்தியின் திருமேனிக்கு எழுந்தருள பண்ணி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிப்பதே ஒரு ஆகம விதி. இங்கே நமது திருச்சானூரில் போலவே இங்கேயும் பாஞ்சராத்திர ஆகம விதி கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இந்த உற்சவங்களின் மூலம் வெள்ளம், பஞ்சம், பட்டினி, வியாதி போன்ற இயற்கை உபாதிகள் எல்லாம் குறைந்து மக்களுக்கு சௌபாகியங்களும் மங்களங்களும் உண்டாகுமாம். நாட்டின் அமைதி நிலவுமாம். இதுதான் சாஸ்திரம். ஆகவேதான் எல்லா திவ்ய தேசத்தில் இருக்கும் திருக்கோவில்களிலும் வருடத்துக்கு ஒருமுறை பிரம்மோற்சவம் நடைபெறுகிறது. முதலாக பிரம்மதேவர் ஆரம்பித்ததால் பிரம்மோற்சவம் என்று இது அழைக்கப்படுகிறது. அங்கே திருச்சானூரில் நமது தாயாருக்கு கார்த்திகை பிரம்மோற்சவம் நடைபெறும். அதே போல இதோ இங்கே சென்னையில் இந்த தியாகராய நகரில் உள்ள தாயாரின் இந்த ஆலயத்திலும் இப்போது இந்த தை மாதம் இந்த பிரம்மோற்சவம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இன்று தொடங்கிய இந்த உற்சவம் 9 நாட்களுக்கு நடைபெறும். தாயார் 9 நாட்களிலும் வெவ்வேறு விதமான வாகனங்களில் வெவ்வேறு விதமான அலங்காரங்களில் வீட்டிருப்பாள். சேஷ வாகனத்தில் அனந்தலக்ஷ்மி, ஹம்சத்தில் சரஸ்வதி தேவி, கல்பக விருட்சத்தில் காபிதார்த்த பிரதாயினி, யானை மீது கஜலக்ஷ்மி, கருடாழ்வாரின் மீது வெங்கடாத்திர லக்ஷ்மி, அனுமந்த வாகனத்தில் சீதாலக்ஷ்மி, குதிரை வாகனத்தில் பட்டத்து ராணி, திருத்தேரில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி அப்படிப்பட்ட கோலத்தில் எழுந்தருளி பலவிதமான வாகனங்களில் வந்து நமது குறைகளை எல்லாம் கேட்டு அருள உள்ளாள் தாயார். அதில் முன்னேற்பாடாக இப்போது நடைபெறுவதுதான் இப்போது நாம் தரிசித்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த துவஜாரோகண கைங்கரியம். பக்தர்களே, அந்த தாயாரின் இந்த துவஜாரோகண கைங்கரியத்தை ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி மூலமாக தரிசிக்கும் பாக்கியத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் அல்லவா? நமஸ்தேத்து மகாமாயே ஸ்ரீபீட்டே சுரபூஜிதே சங்கச்சக்கர கதாஹஸ்தே மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று அந்த தாயாரை இருகரம் கூப்பி சேவிப்போம். 14 லோகங்களுக்கும் தாயானவள் கருணாமயி, தாயினும் சாலப் பரிந்து என்பார்கள். அதுபோல பரந்தாமனிடம் பக்தர்களுக்காக பரிந்து பேசும் தயாதேவி, இவளது பொற்பாத கமலங்களில் நாமும் சரணமடைவோம். பக்தர்களே, சமுத்திரராஜனின் மகளாக அவதாரம் பண்ணினவள் நீலமேக சியாமளனான ஸ்ரீமன் நாராயணின் திருமார்பில் அமர்ந்ததாக விஷ்ணு புராணம் கூறுகிறது. இதோ இப்போது சங்கல்பம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இதைத் தொடர்ந்து துவஜாரோகண கைங்கரியம் இப்போது நடைபெற உள்ளது. கமலா காந்தா காருண்ய கங்காப்ளிதா மத்விதான், அதாவது பெருமாளுக்கு ஏற்றம் கமலத்தில் வீற்றிருக்கும் தாயாரால், தாயாருக்கு ஏற்றம் பெருமாளால். தாயாருக்கும் தயை உண்டு, மணாளனாகிய திருவேங்கட முடியானுக்கும் தயை உண்டு. ஆனால் அந்த இருவருடைய தயையும் சேர்ந்து நம்மீது வரும்போது அது எவ்வளவு மடங்கு அதிகமாகும். பங்கயத்தால் திருவருளும் எம்பெருமானின் திருவருளும் ஒரு சேர நம் பேரில் பொழிய நாம் தான் எவ்வளவு பாக்கியம் செய்திருக்க வேண்டும். அதை இந்த பிரம்மோற்சவ நன்னாளில் தாயாரிடம் நாம் இதையே வேண்டுவோம். கிருத்தயுகத்தில் நீ ஆதிலக்ஷ்மி, திரேதாயுகத்தில் நீ மகாலட்சுமி, துவாபர யுகத்தில் நீயே கஜலக்ஷ்மி, இந்த கலியுகத்தில் செல்வத்தையெல்லாம் அள்ளித்தரும் வைபவலக்ஷ்மி. பக்தர்களே, கலியுகத்தில் தியானம், ஹோமம்,
தபஸ் இவற்றை எல்லாம் விட எளிமையான வழி நாமஸ்மரணை. தாயாரின் அருளைப் பெற அவளுடைய திருநாமங்களை உண்மையான பக்தியுடன் வாய்விட்டு சொன்னாலே போதும். ஆகவேதான் நேற்று அந்த தாயாரின் திருநாமங்களை சொல்லி சொல்லி லட்சார்ச்சனை, அதாவது குங்குமார்ச்சனை நடைபெற்றதை நாம் இதே தொலைக்காட்சி வாயிலாக தரிசித்தோம் அல்லவா? மகாலட்சுமி, ரமா, வித்யா, ஹரிவல்லபா, கருடவாகினி, பிரம்மஜனனி, சம்பத் பிரதாயினி, ஸ்ரீசக்கரவாகினி, மகா பிரகிருதி ஸ்வரூபிணி, ஜயா, மங்களா, ஸ்ரீ, புவனேஸ்வரி, இப்படி அவளுடைய திருநாமங்களை நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இதில் ஏதேனும் ஒன்றை மனப்பூர்வமான பக்தியுடன் சொன்னால் அந்த தாயாரின் திருவருள் நமக்கு கிடைக்கும் என்பதில் எந்தவிதமான சந்தேகமும் இல்லை. அந்த தாயாரின் சௌந்தரிய வடிவத்தை இப்போது நாம் தரிசித்தோம் அல்லவா? இதோ இப்போது அனைவரும் துவஜாரோகண கைங்கரியத்துக்கு தயாராக உள்ளார். மகாலட்சுமியை சேவிப்போம். ஹிரண்யவர்ணாம் ஹரிணீம் சுவர்ண ரஜஸ்ரதாம் சந்திராம் ஹிரண்யமயீம் லக்ஷ்மீம் ஜாத்தவேதோ ஆக. அப்படிப்பட்ட பொன் போன்ற காந்தியை உடையவளும் பாவங்களை போக்குபவளும் பொன்னாலும் வெள்ளியாலும் ஆன ஆபரணங்களை அணிந்தவளும் சந்திரனுக்கு சகோதரி ஆனவளும் பொன்னே பெண்ணுருக்கொண்டு வந்தது போன்ற அந்த தோற்றம் உள்ள அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாரை இதோ இந்த சமயத்தில் இருகரம் கூப்பி நாம் சேவித்துக் கொள்வோம். ஸ்ரீ என்கிற பதத்துக்கு மகாலட்சுமி என்றுதான் பொருள். ஸ்ரீவத்சன், ஸ்ரீகாந்தன், ஸ்ரீநாதன் என்று எம்பெருமான் மகாவிஷ்ணுவை இந்த ஸ்ரீயை முன்னிட்டே அழைக்கிறார்கள் அல்லவா? இத்தகைய ஸ்ரீ என்கிற பதத்துக்கு 6 அர்த்தங்கள் உண்டாம். ஸ்ரீ என்பவள் எப்போதும் எம்பெருமானை ஆசிரயித்தே இருக்கிறாளாம். நாம் ஆசிரயிப்பதற்கு தகுந்தவளாகவும் இருக்கிறாள். ஸ்ரீரங்கம் போனால் ரங்கநாதரை சேவிக்க ஏகப்பட்ட பிராகாரங்கள், சப்த பிராகாரம் என்பார்கள். அதே போல ஆனால் தாயாரை மட்டும் ஒரு க்ஷணத்தில் சேவித்து விடலாம். அதே போலதானே திருமலையிலும் 7 மலையேறி போனாலும் స్ఫటికసన్నిభమకరకుండల కనకమకుటధరం విహగ పరిబృఢ మహి విభూషణ అసుర వైరిరథం అలికుళాలక కుటిల కోమల అనిల తుల్యగతిం భృకుటి భీషణ కరతలాలక కనకలోచనకం కనక కల్పిత ఖచిత రత్న మకుట కోటిధరం సకల పశుపతి హరిత హర హరి సర్ప సంహరణం అనంత కటకం వాసుకి సూత్రం తక్షక కటి బంధనం హార సుకార్కోటకం పద్మం దక్షిణ కర్ణస్థం వామే కర్ణే మహాపద్మం శంఖపణామణిరత్నమరీచి విరాజిత శేఖర గుళిక భుజం కమల భవవందితం స్కంద బృందోపమం కనకమయ కుండలం కంజపుంజాననం కరచరణ కింకిణీ కంభుకోరంభరం శిఖచరిత మందిరం చిత్తమంభోజితం అంభోజలధికారణం మంగళం పంకజం తేజఃపతి సంహారత్యంగజం త్యంబుజే జన జన జంకృత కింకిణికం హన హన హుం కృత హుం కరణం వినతాతనుజం కనకాద్రినిభం భుజంగకులభీషణం విహంగకులభూషణం బృహత్పక్ష విపక్షం గరుత్మంతం నమస్యేహం హరివాహనం హరివాహనం హరికేతనం హరికేతనం బంధజ బంధజ ప్రకట ప్రకట ప్రమథన ప్రమథన గృహబుక్ గృహబుక్ సంగ్రహ సంగ్రహ చంచద్వింజుర చుంచు విదారిత పుంజత్ సింజత్ ఫణిరావికం కణికా కపటిం రింఘశ్లేష ఫణామణి కింగిణి మంజుళ కంజుకర తోం తోం
కరుణోరుహ భీషణ నాదకరం శ్రీమద్గరుడం గరుడం వరదం వరదం విద్యుత్ప్రభం భక్తప్రియం ముఖోన్నత నాసోన్నతం సవ్యవాహన ముఖ్యం ముఖ్యం నీలాంబరధరం నాగాభరణం మణిగణరుచిర క్రీడాహరణం పాదనూపుర కింకిణీ ఘోషం సామగాయతి పక్షయుగ్మం వేదవేద్యతను విహరిత పక్షం సకల శత్రుభీషణ పక్షయుగళం శత్రువాస్యాననం బ్రహ్మాదివందితం స్కంధవహ చక్రిణం సకల దేవలోకానందం సకల సృష్టిపతిం సంహారకారణం కమల సదృశాననం ఝలఝలన కింకిణి ఝర్ఝటం ధోం ధోం దత్తతే ఝలఝలన కింకిణి ఝర్ఝటం ధోం ధోం పక్షీశస్య గరుడతాళం మధ్యమస్వరం గౌళరాగం విష్ణుక్రాంత నృత్తం గౌళరాగం చతుర్విషాణ సంయుక్తం శ్వేతవర్ణం సఘంటికం చతుష్పాద సమోపేతం శుండాదండ విరాజితం కుంభద్వయ సమాయుక్తం దారాష్టక సమన్వితం శూర్పగ్రీవం శూర్పకర్ణం శుభగ్రీవం దీర్ఘపుచ్ఛ సమాయుతం కింకిణీజాల సంబద్ధం హేమదామోపశోభితం పృష్ఠే విచిత్రవస్త్రోత్తం దివ్యరూపం స్మరేద్గజం శ్రీమత్సుధావారిధి జాయమాన హరిప్రియారాధన రక్తచిత్తః దేవైర్నుతో అభ్రమయా చ యుక్తః గజేశ్వరో మంగళమాతనోతు శ్రీమత్సుధావారిధి జాయమాన హరిప్రియారాధన రక్తచిత్తః దేవైర్నుతో అభ్రమయా చ యుక్తః గజేశ్వరో మంగళమాతనోతు ఉత్ఫుల్ల పద్మైః కృతహారభూషితః ప్రమత్తమాతంగగణైశ్చ సేవితః స్వకీయ భార్యా కపిలా సమేతః గజేశ్వరో మంగళమాతనోతు విష్ణోః కృపా వీక్షణ లక్ష వక్షస్థలాశ్రయ కల్పితదామభూషణః అనుక్షణం పింగళయా సమేతః గజేశ్వరో మంగళమాతనోతు ప్రహర్షితో దేవగణైశ్చ సంస్తుతః మృదావళీ కల్పిత శౌర్యగాత్రః ప్రతాపశీలో కుముదో గజేంద్రః గజేశ్వరో మంగళమాతనోతు స్వవర్ణ విత్రస్థ నిబాంధకారో సువర్ణతామ్రాక్షకలాసునేత్రః స్వతామ్రపర్ణీకలయా సమేతః గజేశ్వరో మంగళమాతనోతు సరోజ సంధారిత దివ్య సుందరః శ్రియాసమాలింగిత శుద్ధ చిత్తః స్వశుభ్రదంతీశ్వర శుభ్రదంతీ గజేశ్వరో మంగళమాతనోతు సర్వభూమ్యా విదిత ప్రకారః లక్ష్మీసు సంపూజన బద్ధ దీక్షః సుశోభనాఖ్యా కరణీ సమేతః గజేశ్వరో మంగళమాతనోతు విష్ణుమాజ్ఞయా కల్పిత సుప్రతీకో ఈశాన దిగ్రక్షణ బద్ధ దీక్షః స్వచాంజనా పత్నియుతో గణాఢ్యః గజేశ్వరో మంగళమాతనోతు శ్రీమద్గజదం వరదం భక్తజన ప్రియం లక్ష్మీవాహన ముఖ్యం ముఖ్యం పీతాంబరధర బృహదాకారం హారనూపుర సర్వాభరణం సామంగాయత యుగ్మ సుకర్ణౌ ఝన ఝన ఝంకృత ఘంటానాదం శ్రీమద్గజదం వరదం భక్తజన ప్రియం లక్ష్మీవాహన ముఖ్యం ముఖ్యం పీతాంబరధర బృహదాకారం హారనూపుర సర్వాభరణం సామంగాయత యుగ్మ సుకర్ణౌ ఝన ఝన ఝంకృత ఘంటానాదం దత్తత్ ఝన ఝన ఝంకృత ఘంటానాదం సురక్త పద్మధారిణం దివాకరాక్త తేజసం రథాంగనేమి నిస్వనం శిరోగ్రరత్న కుంభకం మహాబలం సుశోభనం
सुशीलयाख्यलङ्कृतं श्रियश्च वाहनं गजं नमामि तं गजेश्वरं सुरक्तपद्मधारिणं दिवकरात्ततेजसं रथाङ्गनेमिनिस्वनं शिरोग्ररत्नकुम्भकं महाबलं सुशोभनं सुशीलयाख्यलङ्कृतं श्रियश्च वाहनं गजं नमामि तं गजेश्वरम् सुललितगात्रं श्रुतिजनपात्रं शोभनकलशकरम् सुललितगात्रं श्रुतिजनपात्रं शोभनकलशकरम् प्रमुदितहृदयं पार्थिवसदयं पापकविभवकरम् प्रमुदितहृदयं पार्थिवसदयं पापविभवकरम् प्रतिभटहरणं बलरिपुसदनं प्रकटितसाधुपदम् प्रतिभटहरणं बलरिपुसदनं प्रकटितसाधुपदम् सुरगजसेव्यं सुरुचिरभाव्यं शोभितचैत्ररथम् सुरगजसेव्यं सुरुचिरभाव्यं शोभितचैत्ररथम् कमलावाहं घनतरमोघं गजपतितालमिदम् कमलावाहं घनतरमोघं गजपतितालमिदम् दत्तत् गजपतितालमिदम् दत्तत् गजपतितालमिदम् गजराजस्य हंसध्वनिरागम् आदितालं मन्दगमननृत्यं पञ्चमहावाद्यम् ओमस्याः देवदेव्याः भगवत्याः श्री पद्मावती महालक्ष्म्याः सन्निधौ राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं माघमास नवदिन ब्रह्मोत्सव कर्मणि ध्वजारोहण मुहूर्तः शुभ मुहूर्तोऽस्तु भवन्तो महान्तः अनुगृह्णन्तु ओम सुपर्णोऽसि गरुत्मान् त्रिवृत्तेषु
பக்தர்களே, சென்னை மாநகரத்தில் உள்ள ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாரின் திருக்கோவிலில் வருடாந்திர பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு இதோ இப்போது நாம் துவஜாரோகண கைங்கரியத்தை தரிசித்தோம். இந்த துவஜாரோகணமே இந்த உற்சவத்தின் ஆரம்பத்தை குறிக்கும் ஒரு கைங்கரியமாகும். அந்த கைங்கரியத்தை ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி மூலமாக நாம் தரிசித்தோம். இன்று இரவு முதல் தாயார் விதவிதமான வாகனங்களில் விதவிதமான அலங்காரங்களில் எழுந்தருளி நம்மை எல்லாம் ரட்சிக்க உள்ளார். திருமாலின் திரு தேவியும் அவளே, அலைகடலில் பிறந்த அரவிந்த பாவையும் அவளே, வேத நாராயண பிரியலான வேத வல்லியும் அவளே, அல்லிமலரில் வந்த அல்லிமாமலர் மங்கையும் அவளே. பக்தர்களே, அலர்மேல் மங்கை எனும் பத்மாவதி தேவியும் அவளே. அலைமகளே வாழி, மலர்மகளே வாழி, திருமகளே வாழி என ஆழ்வார்கள் பாடிய அந்த அருந்தமிழ் கொண்டு வாழ்த்துவோம். பக்ஷீந்திர பக்ஷ விக்ஷேப தரங்கா அனில சம்பதா நிரஸ்தாசுரசன்னாஹா சமரே சத்ருசூதனா சந்நிதத்ஸ்வ படே யாவத் உத்சவாவபிருத்சக்ஷணம் அஸ்மாத் தினாத் சமாரப்ய யாவத் தீர்த்ததினாந்திமம் சந்நிதிம் குரு பக்ஷீந்திர ராஜ்ஞः ஜனபதஸ்ய ச கிராமஸ்ய யஜமானஸ்ய வைஷ்ணவானாம் விசேஷதः துஷ்டயே புஷ்டயே சைவ சர்வசத்ருஜயாய ச அபமிருத்யுஜயார்த்தாய வைனதேய பிரசீத. ஓம் அஸ்மாத் தினாத் சமாரப்ய யாவத் தீர்த்ததினாந்திமம் சந்நிதிம் குரு பக்ஷீந்திர ராஜ்ஞः ஜனபதஸ்ய ச கிராமஸ்ய யஜமானஸ்ய வைஷ்ணவானாம் விசேஷதः துஷ்டயே புஷ்டயே சைவ சர்வசத்ருஜயாய ச அபமிருத்யுஜயார்த்தாய வைனதேய பிரசீத. ஓம் நமோஸ்து ஹேமாம்புஜ பீடிகாயை, நமோஸ்து பூமண்டல நாயிகாயை, நமோஸ்து தேவாதி தயாபராயை, நமோஸ்து சாரங்காயுத வல்லபாயை. 30 முக்கோட்டி தேவர்களுக்கும் தனது கருணை வெள்ளத்தை பொழிந்து பரந்த இந்த பூலோகம் முழுவதற்கும் நாயகியாக விளங்கும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியே, உன்னை வணங்கி போற்றுகிறோம். இது ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் அருளிய கனகதாரா சோஸ்திரத்தின் ஒரு பாசுரம். பக்தர்களே, அந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் ஸ்வரூபமே நமது ஸ்ரீ பத்மாவதி எனும் அலர்மேல் மங்கை தாயார். அந்த தாயாரின் பிரதிபிம்பமே இதோ இந்த சென்னை மாநகரத்தில் இதோ கொலுவிருக்கும் இந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயார், ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார். அந்த தாயாருக்கு இப்போது திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் ஆதரவில் நடைபெறும் பிரம்மோற்சவ வைபவம் இது. அந்த தாயாரை இருகரம் கூப்பி நாமும் சேவித்து மகிழ்வோம். தாயாரை எம்பெருமானுக்கு புருஷகாரம் என்று நமது பெரியோர்கள் கூறுவதற்கு எத்தனையோ காரணங்களாம். தாயார் பக்கத்தில் இருந்தால்தான் எம்பெருமானின் சீற்றம் குறையுமாம். உதாரணத்துக்கு ராமாவதாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுகிறேன். சீதாதேவி பக்கத்தில் இருந்ததால் தான் ஸ்ரீராமனின் பாணத்திலிருந்து காகாசுரன் தப்பி பிழைத்தான். ஆனால் வாலிவதத்தின் போதோ ராவண கும்பகர்ண சம்ஹாரத்தின் போதோ தேவி ஸ்ரீ ராமபிரானின் அருகில் இல்லை. இன்னும் கூட ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம். இந்திரனின் வேண்டுதலின் பேரில் அசுர சக்கரவர்த்தியான மகாபலியிடம் பிராமண பிரம்மச்சாரி ரூபத்தில் எம்பெருமான் செல்கிறார். அவரது திருமார்பில் அகலாது வீட்டிற்கும் மகாலட்சுமியும் உடன் செல்கிறாள். இதனால் மான் தோலால் தனது திருமார்பை மறைத்து கொண்டாராம் பகவான். தாயார் ஏன்
சேர்ந்து போனாள் என்பதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு. நரசிம்ம அவதாரத்தின் போது எம்பெருமான் பிரகலாதனுக்கு ஒரு வாக்களித்தாராம், இனி உன் சந்ததியில் எவரையும் நான் கொல்ல மாட்டேன் என்று. மகாபலியோ பிரகலாதனின் பேரன். எங்கே எம்பெருமான் கோபத்தில் தனது வாக்கை மறந்து விடுவாரோ என்கிற பயத்தில் பிராட்டி அவரது திருமார்பில் மறைந்து கொண்டு கவனிக்கிறாளாம். எத்தனை முன்னெச்சரிக்கை பாருங்கள் தாயாருக்கு. இதுதான் புருஷகாரம். அதோ தாயாருக்கு மங்கள ஹாரத்தி. ஸ்ரீயகாந்தாய கல்யாண நிதையே நிதியத்திலாம் ஸ்ரீ வெங்கட நிவாசாய சீனிவாசாய மங்களம் என்று அவளது மணாளனுக்கு பாடும் அதே மங்களஹாரத்தியை இந்த தாயாருக்கும் நாம் சமர்ப்பிக்கலாம். ஷீராப்தி கன்யக்கு நீராஜனம் என்று அன்னமையா பாடியதைப் போல அதோ அந்த தாயாருக்கு இப்போது கற்பூர நீராஜனம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அந்த தாயாரை இருகரம் கூப்பி சேவித்து மகிழ்வோம். இதோ இப்போது இந்த துவஜப்படத்தில் இருக்கும் துவஜஸ்தம்பத்தில் இருக்கும் தாயாருக்கும் அந்த மங்களஹாரத்தி இப்போது காட்டப்படுகிறது. பக்தர்களே, லக்ஷ்மி கடாட்சம் என்பது அத்தனை மகிமை வாய்ந்தது. பாருங்களேன், அந்த மறைந்திருந்து பார்க்கும்போது தாயாரின் கடைக்கண் அந்த மகாபலியின் மீது பட்டதாம். அவ்வளவுதான், அவனுக்கு வந்த அந்த பாதாள லோகத்தையே ஆளும் அந்த ஒரு அதிர்ஷ்டமும் கிடைத்ததல்லவா? இதைத்தான் நாம் லக்ஷ்மி கடாட்சம் என்று சொல்லுவோம். ஆகவே அந்த லக்ஷ்மி மகாலட்சுமியை இருகரம் கூப்பி சேவிப்போம். லக்ஷ்மீம் க்ஷீரசமுத்திர ராஜதனயாம் ஸ்ரீரங்க தாமேஸ்வரீம் தாசீபூத சமஸ்த தேவவனிதாம் லோகைக்க தீபாங்குராம் ஸ்ரீவன் மந்த கடாட்ச லப்த விபவ பிரம்மேந்திர கங்காதராம் துவாம் திரைலோக்க குடும்பினீம் சரசிஜாம் வந்தே முகுந்த பிரியாம் என்று அந்த தாயாரை இருகரம் கூப்பி சேவிப்போம். பராசரபட்டர் தனது குணரத்ன கோஷத்தில் என்ன குறிப்பிடுகிறார் தெரியுமா? எம்பெருமானின் சௌந்தரியத்தை விட தாயாரின் சௌந்தரியம் பல மடங்கு உயர்ந்தது என்று சொல்லத் தொடங்கியவர் அதை தாயாரை விழித்து சொல்லவில்லையாம், பெருமாளை விழித்து சொல்கிறாராம். ஏன் தெரியுமா? தாயாரின் புகழை எம்பெருமான் கேட்க விரும்புகிறாராம். நிகரில் புகழுடையாய் என்று நம்மாழ்வார் பாடியிருக்கிறார் அல்லவா? அப்படி எம்பெருமானுக்கு அந்த புகழை தருபவளே தாயார்தானாம். இதோ இப்போது அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த பரிவட்ட மரியாதையானதும் இப்போது இந்த உற்சவத்தை இனி தொடர்ந்து நடத்தப் போகும் பாக்கியம் இதோ இந்த அர்ச்சக சுவாமிக்கு கிடைத்ததாக அர்த்தம். எத்தனை பாக்கியம் செய்திருக்கிறார் பாருங்கள். அந்த தாயாரின் பிரம்மோற்சவத்தை வராக இருந்து நடத்தும் அந்த பாக்கியம் இவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது. அதே போன்ற பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்காமல் போகலாம். ஆனால் அந்த தாயாரை தரிசிக்கும் பாக்கியம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது அல்லவா? அதுவே நாம் செய்த புண்ணியம்தானே. ஆகவே அந்த தாயாரை சேவித்து மகிழ்வோம். பக்தர்களே, தாயாரின் புகழை ஏன் எம்பெருமான் கேட்க விரும்புகிறார் தெரியுமா? புகுந்த வீட்டில் மனைவியை பற்றி தன் வீட்டவர்கள் புகழ்ந்து பேசும்போது ஒரு கணவனுக்கு தோன்றும் பெருமிதம் இங்கே எம்பெருமானுக்கு தாயாரின் திவ்ய சௌந்தரியத்தை புகழும்போது வருகிறதாம். அப்படிப்பட்ட அந்த சௌந்தரியவதியான தாயாரின் பேரழகுக்கு எந்த தீக்கண்களின் திருஷ்டியும் படவேண்டாம் என்று நாம் இந்த சமயத்தில் பெரியாழ்வாரைப் போல வேண்டிக் கொள்வோம். அன்று பெரியாழ்வார் யானை மீது பவனி வரும்போது கருடாரூடனாக எம்பெருமான் வானத்தில் வரும்போது எங்கே யாருடைய தீக்கண்களின் திருஷ்டியாவது அவருக்கு பட்டுவிடுமோ என்று பயந்து பல்லாண்டு பாடினார் அல்லவா? பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோட்டி 100,000 மல்லாண்ட திண்டோள் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு அடியமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்றி 1000 பல்லாண்டு வடிவாய் நின்வல மார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு என்று அன்றே எம்பெருமானின் பக்தஸ்தலத்தில் அகலாது வீட்டிருக்கும் அந்த தாயாருக்கு பல்லாண்டு பாடிவிட்டார் பெரியாழ்வார். அதே போல நாமும் இந்த பிரம்மோற்சவ சமயத்தில் அந்த தாயாருக்கு எந்த விதமான தீக்கண்களின் திருஷ்டியும் படாமல் இந்த பிரம்மோற்சவம் மங்களகரமாக நடைபெற வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு அந்த தாயாருக்கும் நாம் பல்லாண்டு பாடி மகிழ்வோம். தாயாரை
புகழும்போது ஆழ்வார்களும் ஆச்சாரியர்களும் தாயாரை முன்னிட்டு கொண்டுதான் எம்பெருமானை போற்றுகிறார்கள். இதை அனைத்தையும் அவர்கள் அருளிய பாசுரங்கள் மூலமாக நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அல்லவா? இங்கே தேவிதாசன் என்று ஒரு கவிஞர், அவர் தனது பாடலில் எப்படி போற்றுகிறார் பாருங்கள். வைஜெயந்தி மலர் மார்பன் மாதவன், இவனே மகாலட்சுமியின் மணவாளன் ஸ்ரீதரன் என்று. அதாவது வைஜெயந்தி மாலை என்றால் துளசி மாலை, அந்த மாலையை திருமார்பில் தரித்தவன் மகாலட்சுமியின் மணவாளன். மாதவன் என்றால் மா என்றால் லக்ஷ்மி, அந்த லக்ஷ்மியை மார்பில் தரித்தவன் மகாலட்சுமி மணவாளன். ஸ்ரீதரன், ஸ்ரீயை மார்பிலே தரித்தவன். திரைஜகன் மூலன், 3 உலகங்களுக்கு மூலமாக இருப்பவன். பத்மினி மோகனன், பத்மாவதி தாயாரின் மனதை கவர்ந்தவன். சுகந்த மலர்களை அணிந்தவன், நளினி மனோகரன் என்று இப்படியெல்லாம் எம்பெருமானை தாயாரை முன்னிட்டே போற்றுகிறார். அந்த தாயாரை இப்போது நாம் இந்த சமயத்தில் சேவித்து மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். சென்னை மாநகர வாசிகளுக்கு எத்தனை புண்ணியம் கிடைத்ததோ அத்தனை புண்ணியம் திருப்பதியிலிருந்தே நமக்கு கிடைத்து விட்டது. देवदेव्याः भगवत्याः श्री पद्मावती महालक्ष्म्याः सन्निधौ राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं माघमासे नवदिने ब्रह्मोत्सव कर्मणि सकलदेवताह्वानार्थं भेर्यर्चनं करिष्ये। पुण्याः जलेन भेरीं सम्प्रोक्ष्य ओम शतधारं सहस्रधारं अपरिमितधारं अपरिमितम् अच्छिद्रम् अक्लिष्टम् अक्षय्यम् अनन्तम् अरिष्टम् अच्युतं परमं पवित्रं भगवान् वासुदेवः पुनातु। भेरी मध्ये ओम त्रिगुणात्मिकायै प्रकृत्यै नमः। दक्षिणे ओम विष्णवे नमः। ओम श्रीं श्रियै नमः। मध्ये ओम ब्रह्मणे नमः। वामे ओम रुद्राय नमः। दक्षिणमुखे ओम सूर्याय नमः। वाममुखे ओम चंद्रमसे नमः। चर्मसूत्रे ओम वासुकये नमः। दक्षिणपार्श्वे नवरन्ध्रेषु ओम वागीश्वर्यै नमः। क्रियायै नमः। कीर्त्यै नमः। लक्ष्म्यै नमः। सृष्ट्यै नमः। विद्यायै नमः। कान्त्यै नमः। दुर्गायै नमः। गणपतये नमः। वामपार्श्वे नवरन्ध्रेषु अत्रये नमः। भृगवे नमः। वसिष्ठाय नमः। भार्गवाय नमः। नारदाय नमः। गौतमाय नमः। भारद्वाजाय नमः। विश्वामित्राय नमः। मरीचये नमः। अष्टसु दिक्षु ओम रंभायै नमः। मेनकायै नमः। ऊर्वश्यै नमः। तिलोत्तमायै नमः। सुमुख्यै नमः। सुंदर्यै नमः। रमण्यै नमः। यामवर्धिन्यै नमः। कोणादिदेवताय ओम वायवे नमः। शंखादिदेवताय ओम विष्णवे नमः। काहलादिदेवताय ओम वागीश्वर्यै नमः। मर्धलादिदेवताय ओम त्रिमूर्तिभ्यो नमः। मुखादिदेवताय ओम ब्रह्मणे नमः। मृदंगादिदेवताय ओम रुद्राय नमः। झल्लर्यदिदेवताय ओम विष्णवे नमः। पटहादिदेवतायै ओम श्रियै नमः। डमरुकादिदेवताय ओम ईशानाय नमः। उडुक्कादिदेवताय ओम षण्मुखाय नमः। करट्यधिदेवताय ओम धर्मराजाय नमः। तिमिरादिदेवताय ओम वायवे नमः। ढक्कर्यधिदेवताय ओम चंद्रशेखराय नमः। तालादिदेवताय ओम ब्रह्मणे नमः। वामहस्तखंडादिदेवतायै
ओम श्रीयै नमः दक्षिणहस्तखण्डादिदेवतायै ओम पार्वत्यै नमः इति अर्घ्यपाद्याचमन गन्धपुष्प धूपदीपं समर्प्य लक्ष्मी क्षमा पार्श्वगतस्य तस्य समस्त देवार्चित पादुकस्य स्थित्वा पुरस्तान् मुरशासनस्य भेरीमहं सम्प्रति ताडयामि लक्ष्मी क्षमा पार्श्वगतस्य तस्य समस्त देवार्चित पादुकस्य स्थित्वा पुरस्तान् मुरशासनस्य भेरीमहं सम्प्रति ताडयामि स्वरूपनिरुपहरिं स्मृतिमतियुगलं ग्रहगणयन्त्रं दक्षिणचक्रं फणिपतिवामं मध्यममाकाशं तत्तन्मध्यममाकाशं दक्षिणब्रह्मं वामगरुद्रं मध्यमविष्णुं वासुकिपाशं वासुकिपटकदण्डं दण्डं चञ्चत्पुटितं आवाहितदेवाहितदेवं तत्तत्तृप्यदतालमिदम् श्री विश्वक्सेनः विश्वक्सेन किरीटी मणिमयमकुटः पूर्वहस्ताब्जयुग्मे मुद्रां कौमोदकीं चापरकरयुगले शङ्खचक्रं दधानः स्वर्णाभो लम्भकुक्षिः प्रतिभटभयकृत्पिङ्गलश्मश्रुकेशो ह्रीमत्या सूत्रवत्या त्वरितमिह समायातु दिव्योत्सवार्थम् विश्वक्सेन प्रीत्यै मध्यमस्वरं देवगांधारी रागं भद्रतालं विष्णुक्रांत नृत्यं देवगांधारी विश्वक्सेन ताళं भानामधिपति भानामिव तनु भानाभास्वर सुरनाथं वीणा वेणु मृदङ्गालापित वाणी जननुत पादयुतं घोराकृतिरिपुवाराहितकर नारायण परिवारेशं वन्दे बुध जन बृन्दे हित जन मन्दे तरवर सौभाग्यम्
மாட்டின்ட்டு இதால அடிங்க கொஞ்சம் கனமா. இப்ப அடிச்சேன் இல்லையா, நான் முதல்ல அடிச்சு காமிச்சேன் இல்லையா, அது மாதிரி पुष्पक्सेन प्रीत्यै पुष्पक्सेन तालम् भानामधिपति भानामिव तनु भानामिवतर सुरनाथम् भानामधिपति भानामिव तनु भानाभास्वर सुरनाथम् वीणा वेणु मृदङ्गालापित वाणी जननुत पादयुतम् घोराकृतिरिपुवाराहितकर नारायण परिवारेशम् वन्दे बुधजन बृन्दे हितजन मन्दे तरवर सौभाग्यम् शङ्खश्चक्रम् गदाब्जम् मुसलमसिवरः कार्मुकम् दिव्यबाणा विष्णोरष्टायुधीयम् प्रचुरतर निजालोक पूर्णाखिलाशा दृप्यद्रक्षो निहन्त्री त्रिदश समुदया भीतिदात्री सुगात्री श्रीभूमि षष्ट्य विष्णोस्त्वरितमिह समायातु दिव्योत्सवार्थम् श्री हेतिराजः हेतिराज प्रीत्यै मध्यमस्वरम् गौळरागम् भद्रताळम् विष्णुक्रान्त नृत्यम् गौळरागम् श्री सुदर्शन तालम् हे सुदर्शन हेतिराज सहस्र भास्कर सन्निभा नक्रबाधित मद्द गजवर रक्षकाश्रित वत्सला कैटभादि महाबलिष्ट सुरारि बृन्द विनाशका श्रीधवोत्सव सेवनार्थमिकैः कृपयाधुना श्री पांचजन्यः अखिल जगद अभिवृद्धिरस्तु पांचजन्य प्रीत्यै मध्यमस्वरम् भूपालरागम् ध्रुवतालम् भुजंग नृत्यम् भूपालम् श्री पांचजन्य तालम् हे महाशय शंकराज सहस्र चंद्र सम प्रभा पांचजन्य निजस्वनैर्बधिरीकृताखिल दानवा क्षीर सन्निभ क्षीरवारिधि संभवार्ति विनाशका श्रीधवोत्सव सेवनार्थमिकैः कृपयाधुना श्रीनन्दकः नन्दक प्रीत्यै मध्यमस्वरम् बिलहरिरागम् रूपकतालम् विष्णुक्रान्तनृत्यम् श्रीनन्दकतालम् हे महोज्ज्वल कान्ति पुञ्ज विराजिताखिल पूजिता नन्दकाभिद शस्तवरदि विजारि कंठ विलुण्ठना दैत्यमस्तक भेदनार्जित दिव्यकान्ति विराजिता श्रीधवोत्सव सेवनार्थमिकैः कृपयाधुना श्री कौमोदकी कौमोदकी प्रीत्यै दैवतस्वरम् केदाररागम् जयतालम् कुट्टिमनृत्यम् केदारम् श्री कौमोदकी तालम् मेरु पर्वत सारयुक्ते भव्य कांति विराजिते दैत्य वृंद विभेदने धृत सेमुषी
रम्य करतलवासिनि सुरसेविते श्रीधवोत्सव सेवनार्थमिगैः कृपयाधुना श्री शार्ङ्गः शार्ङ्गप्रीत्यै दैवतस्वरम् आरभिरागम् जयताळम् कुट्टिमनृत्यम् श्री शार्ङ्गताळम् शार्ङ्गदानव संघनाशक देव वृन्द निषेविता देवतास्त्र विशेष सेवित वासुदेव करस्थिता दानवी निवहत गर्भ विभेदनार्चित विक्रमा श्रीधवोत्सव सेवनार्थमिगैः कृपयाधुना अनन्तः अनंत प्रीत्यै पुन्नागवराळी रागम् जयताळम् मार्ताण्ड बिंब निभमाणिक्य जाल भव देदीप्यमान सुषमा जालायमान फण जालावृत प्रकट खालाहलोज्ज्वल मुखः निद्रान विष्णुमुख निश्वासवः गन्धवः पानाति तुन्दिल वपुः भूमि सरोजवर नालायमान तनुयष्टिर् भुजंग रमणः श्री पक्षिराजः शेष गरुड़ प्रीत्यै धन्यासीरागम् भद्रताळम् विष्णुक्रान्त नृत्यम् गरुडताळम् झन झन झङ्कृति किङ्किणिकम् प्रतिपदहुं कृत कङ्कणकम् विनतातनयम् प्रणमामि नमम् सनक सनन्दन स्तुत विभवम् विषधर दमनम् विषधर हरणम् विषधर हारधरम् शतमक भयदम् शतमक भवन स्थित पीयूषधरम् कमलज पति सेवन चणमणगम् गुरुतर पक्षधरम् हरिरथ ममलम् खगकुल तिलकम् खगपति मध्य भजे कुमुदः प्रागाशाभिमुखो महागजगतो नेत्रत्रयाब्जोज्ज्वलः पञ्चाशद्विषणाङ्गणैः परिवृतो शुभ्रश्चतुर्भिर्भुजैः वज्रं चक्रमथाञ्जलिं च कुमुदः बिभ्रत् विभूषोज्ज्वलः तीर्थान्तोत्सव सेवनार्थमधुना क्षिप्रं समागच्छतु कुमुदस्य मंगलताळं षड्जमस्वरं शुरुट्टिरागं विलासनृत्यं शुरुट्टि कुमुदताळं विमल शशि रुचि मुषित मुरभय वारणं भववारणं मकुटधर मणिकुलिश भुज रुचिरञ्जलिं रजिताञ्जलिं अरुण निवसन मयूख विलसित लोचनं भवमोचनं भजत परिमिक कुमुदमिति जननामकं गणनायकं नामकं गणनायकम् कुमुदाक्षः हेमाभो महिषासनस्त्रिनयनो श्यामाम्बरो भासुरो देवोऽसौ कुमुदाक्षकः परिवृतः दैत्यैः पितॄणाङ्गणैः बिभ्रन्मुद्गर खड्गयष्टिमनिशं युद्धोत्सुकैर्स्वैर्भुजैः तीर्थान्तोत्सव सेवनार्थमधुना
क्षिप्रं समागच्छतु कुमुदाक्षस्य बद्धावतालं ऋषभस्वरं हंसध्वनिरागं सर्वतो भद्रनृत्तम् कुमुदाक्षतालं पृथुल निज भुज विधृत शनिवर खड्गमुद्गर यष्टिकं मकुट विलसित हरित मणिगण शात कुंभ निभाकृतिं निखिल दिति सुत विहित रति मति भीमशैरि भवाहनं नमत सित रुचि जलज विरचित नामकं गणनायकम् नामकं गणनायकम् पुंडरीकः रक्ताभो हयवाहनस्त्रिनयनो श्यामांबरो भासुरो दोर्भिर्बिभ्रमथाञ्जलिञ्च मुसलं चक्रञ्च भूषोज्ज्वलः चक्रैः क्रूरमहागणैः परिवृतः श्रीपुण्डरीकाह्वयः तीर्थान्तोत्सवसेवनार्थमधुना क्षिप्रं समागच्छतु पुण्डरीकस्य भृङ्गिणीतालं गांधारस्वरं कल्याणीरागं केतकनृत्तम् पुण्डरीकतालम् अरुणकपिशित विलसदनुभव रोचिषं रुचिराननम् विमल शशिरुमुख कमल मरुतर घोटको परिवासिनं सतत करतल विधृत विलसित चक्रमौसल मंजलिं नमत परिमिख कपिश मृदुतर वाससं शुभवाससं वाससं शुभवाससं वामनः कुन्दाभशकटासनस्त्रिनयनो नीलाम्बरालङ्कृतः वज्रं शूलमथो भुजैर्दददयं मुष्टिञ्च भूषोज्ज्वलः रक्षोनाथगणैर्वृतो बहुमुखैः श्रीवामनोऽसौ विभुः तीर्थान्तोत्सवसेवनार्थमधुना क्षिप्रं समागच्छतु वामनस्य मल्लतालं पञ्चमस्वरं श्रीरागं भद्रमाली नृत्तम् समय विलसित कुसुम परिमल कुंद पुष्प परिच्छदं महित विघटित कनक रथवर संततं सुमनोहरं कनक गिरि निभ पृथुल निज भुज वज्रशूल समुष्टिकं नमत परिमिख कपिश मृदुतर वाससं बहुलोचनं वाससं बहुलोचनं शंकुकर्णः पीताभो बहुभूषणस्त्रिनयनो व्याघ्रासनो माल्यवान् पाशञ्चाङ्कुशमञ्जलिञ्च सततं बिभ्रच्चतुर्भिर्भुजैः भूतानां बहुसंख्यकैः परिवृतः श्रीशङ्कुकर्णाह्वयः तीर्थान्तोत्सवसेवनार्थमधुना क्षिप्रं समागच्छतु शङ्कुकर्णस्य मङ्गलतालं दैवतस्वरं काम्बोधीरागं कांतारकुट्टिमनृत्तं काम्बोधि शङ्कुकर्णतालं कपिशतनुरुचि विनत विलसित दीपिकाखिल जिङ्मुखं चलित घन घन विपिन परिबृढ वाहन स्थिति दीक्षितम् अमित भुज बल विघट विधृत करवर पाशमंकुश मंजलिं नमत परिमिख मतुल मिख भुवि शंकुकर्ण
शङ्कुकर्णसमाह्वयम् सर्वनेत्रः धूम्राभो मृगवाहनस्त्रिनयन श्यामाम्बरो भासुरो दौर्भिष्टङ्कपरश्वधौ च सुवहन् मुष्टिञ्च भाषं वहन् नागानां बहुभिर्गणैः परिवृतः श्री सर्वनेत्राह्वयः तीर्थान्तोत्सव सेवनार्थमधुना क्षिप्रं समागच्छतु सर्वनेत्रस्य मङ्गलताळं दैवतस्वरं भैरवीरागं वृत्तकुट्टिमनृत्तम् सर्वनेत्रताळं कपिससुरविलदरुण सरसि जलोचनं बहुलोचनम् असित समयिक महित जलधर रूरुकोपरि सुस्थितम् सतत करतल विधृत विलसित टङ्कपाश परश्वधम् नमत परिमिक कपिश मृदुतर सर्वनेत्र समाह्वयम् सर्वनेत्र समाह्वयम् सुमुखः श्यामाभो मृगराजवाहनगतो नेत्रत्रयाब्जोज्वलः हस्तैः शक्तिरथाङ्गमञ्जलिञ्जमु सुमुखो बिभ्रद्विभूषोज्वलः भूतानां शतपालकैः परिवृतः कृष्णांशुको भासुरो तीर्थान्तोत्सव सेवनार्थमधुना क्षिप्रं समागच्छतु सुमुखस्य भद्रताळं निषादस्वरम् अमृतवर्षिणी रागं परिभद्रनृत्तम् अमृतवर्षिणी सुमुखताळं निशित करतल नखर विलसित पंचवक्त्र विलासितम् पृथुल शतमख विमल मणिगण सोदरोज्वल विग्रहम् अरुण मणिगण सदृश निवसन वेष्टितोधर बंधनम् सुमुखम भजत मकुट मणिगण रंजिताखिल विग्रहम् सुप्रतिष्ठः राजावर्त समान कांति निजय स्थूलो दरो भीषणः हस्तैः कुन्दमथार्गलं च विदधन् मुष्टिं च युद्धोद्यतः रक्तस्यन्दन संस्थितोधर भुजः श्री सुप्रतिष्ठिताह्वयः तीर्थान्तोत्सव सेवनार्थमधुना क्षिप्रं समागच्छतु सुप्रतिष्ठितस्य कर्करीतालं गान्धारस्वरं मोहनरागं कटिबन्धननृत्तम् विमल शशिमुख विलस दुरतर पन्न गोपरि सुस्थितम् पृथुल शतमख हरित मणिगण सोदरोज्वल विग्रहम् अरुण मणिगण सदृश सुमनस वेष्टितं बहुलोचनम् भजत कर धृत परिग विलसित सुप्रतिष्ठ समाह्वयम् सुप्रतिष्ठ समाह्वयम् सर्वगद्यं विद्याश्च मूर्तिधारिण्यः त्रयीचाङ्गैर्वपुष्मति एकायनाद्यागमाश्च कुमुदाद्याः सनायकाः गङ्गादिसर्वसरितः मेर्वादिक्ष्माभृतश्च भोः श्रीधवोत्सव सेवार्थं समायातमुदायुताः सर्वे देवाः सर्वे ऋषयः सर्वे पितरः सर्वे पर्वताः सर्वे सागराः सर्वा नद्यः सकलत्र भर्तृपुत्र समुचित परिवाराः प्राञ्जलयः
देव्याः देवदेव्याः भगवत्याः श्री पद्मावती महालक्ष्म्याः सन्निधौ माघमासे नवदिन ब्रह्मोत्सव सेवनार्थं श्री विश्वक्सेन प्रसन्न शासनात् गजराजेनाहूतः गच्छा गच्छा ध्वजावरोहण पर्यन्तं सावधानं श्री पद्मावती कैंकर्य शक्तो भव। मुखपंच समवक्त्र समनाशि नयने दशकर्ण दशबाहु दशचक्र दशसृक् अतिरक्त तनुवर्ण गलमेक हृदयं ध्वजपादहितभूत बलिपीठ देवं मुखपंच समवक्त्र समनाशि नयने दशकर्ण दशबाहु दशचक्र दशसृक् अतिरक्त तनुवर्ण गलमेक हृदयं ध्वजपादहितभूत बलिपीठ देवं ध्वजपादहितभूत बलिपीठ देवं। सर्वप्रीत्यै सर्ववाद्यानि घोषयेत् मलहरिरागम्। प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ